Welcome to all of you, my dear students. Welcome to all of you in 8th class physics. And our next chapter is friction. We had completed our first chapter, that is the force and pressure. Okay, and we also completed our exercise question. Okay, and our next topic is friction. So, friction we also discuss in our previous lecture that friction is the when one object slides over the another objects, then the force of friction is comes into existence. Okay, when we applied force in forward direction, then the friction force is always in reverse direction. Okay, so this is all about the friction, and we also discuss how to measure the friction. Friction is measured by spring balance. Okay, now one more thing, what is the cause of friction? The cause of the friction is the interlocking between the two surfaces, or we can say that in valleys and what hills. Okay, so our next topic is types of friction. Okay, majorly there are three types of friction. First, static friction, limiting friction, and kinetic friction. Okay, again the kinetic friction is further classified in two types: sliding friction and rolling friction. Okay, so this is the types of friction. Now we are going to discuss our first type is static friction. Okay, so first is static friction, and this is the definition of static friction. So please write: the opposing force that comes into play when one object tends to move over the surface of another, but the actual motion does not start, is called static friction. Okay, what is the opposing force that comes into play? Opposing force means it is the force in backward direction. Suppose if I applied force in this direction, then the friction in रिवर्स डायरेक्शन. सो दिस इज द अपोजिंग फोर्स. ओके, और ये अपोजिंग फोर्स कब एक्चुअली अपना रोल प्ले करता है? जब वन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर. जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी सरफेस पे क्या करता है? मूव करता है, बट द एक्चुअल मोशन डज नॉट स्टार्ट. लेकिन एक्चुअल मोशन नहीं होता है. ओके, सपोज दिस इज द one surface, this is my palm, one surface, and this is the chalk, so this is the another object. So if I put the chalk on this surface or my palm, then if I applied the force, if I applied the force in this direction and the friction in opposite direction, but the object is not start. Object means the chalk is not start, is not move. Okay, so स्टैटिक फ्रिक्शन वह फ्रिक्शन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है या मूव करता है, लेकिन वो उस ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट नहीं होता है, वो अपनी पोजीशन पे क्या रहता है? रुका हुआ रहता है. ठीक है, दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, सम मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस, सो प्लीज राइट. This is the important points of static friction. Okay, let's see. It prevents the motion of the object and does not allow two objects to slide
upon one another. Okay, it prevent the motion of object. ये ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है, रोकता है, बचाता है. does not allow two objects to slide upon one another. और दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होने से क्या करेगा, बचाएगा. ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ. लेकिन ये फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन खुद से जनरेट नहीं होता है. ठीक है, ये कब पिक्चर में आता है, इट कम्स इन टू प्ले ओनली वेन एन अप्लाइड फोर्स एग्जिस्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट. ओके, ये स्टैटिक फ्रिक्शन तभी आएगा या तभी अपना रोल प्ले करेगा जब कोई फोर्स अप्लाई किया जाए उस ऑब्जेक्ट के ऊपर. ओके, सपोज अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जैसे ये है, यहाँ पे इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ. तो जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, तभी ये फ्रिक्शन क्या होगा, पिक्चर में आएगा. ठीक है, लेकिन इसमें ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं होगा. ठीक है, ये अपनी जगह पे फोर्स लग रहा है लेकिन ये अपनी जगह से मूवमेंट में नहीं है. ठीक है, तो वही फ्रिक्शन जो है वो कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, प्लीज राइट दिस पॉइंट. This is the second types of friction, that is limiting friction. Okay, before going through the definition, you assume that मुझे एक बहुत बड़ा बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करना है, मूव करना है, ले जाना है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगा. ठीक है, जब मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा, रोकेगा. लेकिन मुझे उसको मूव करवाना है तो उस स्टैटिक फ्रिक्शन के अगेंस्ट थोड़ा और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. तो उस कंडीशन में जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी. क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी. उसके बाद भी अगर मैंने फोर्स लगाया तभी वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, जस्ट मूव होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, वही क्या होती है, लिमिटिंग. स्टैटिक में ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे स्टेशनरी होता है, वो मूव नहीं करता है. लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन आर दोज फ्रिक्शन इन विच ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट टू मूव. ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स that comes into play when one object is just at the verge of moving over the surface of another object. Okay, this is the maximum opposing force. Maximum opposing force that comes into play when one object is just at the verge of moving over the surface of another. Just object start to move. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे मूव होना स्टार्ट करता है. ठीक है, सो ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन. या अपन यूँ कहें, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वही क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा. ओके, सो दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन. राइट द डेफिनेशन. This is the third type of friction, kinetic friction. Okay, suppose if I increase the applied force slightly greater than the limiting friction, then the object or box start to move. ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू कर दिया या मूव होना शुरू कर दिया. इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो क्या हो गया है, डिसअपियर हो गया है, गायब हो गया है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि द अप्लाइड फोर्स इज मोर देन द
limiting friction, and at this stage the value of friction or the value of limiting friction is called kinetic friction. Why kinetic friction? Because at this stage the object start to move. Okay, so kinetic friction is the opposing force that comes into play when one object is actually moving over the surface of another object. इसमें actually object क्या करेगा, move करना शुरू कर देगा. ठीक है, एक बार रिमाइंड करो मैं तीनों चीज़ों को. स्टैटिक फ्रिक्शन जिसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसमें ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन की वह वैल्यू जिस पर ऑब्जेक्ट जस्ट मूव होना स्टार्ट करे. ठीक है, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव करना शुरू कर दे, ऑब्जेक्ट मूव होने लगा है. ठीक है, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो हैज टू टाइप्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. We will discuss later. Okay.